Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss an important topic in reproductive health, the menstrual cycle. So let's start with introduction. The menstrual cycle is a natural monthly process that occurs in females of reproductive age. It involves cyclic changes in the ovaries and uterus regulated by the hormones, which result in the development and release of an ovum, that is egg, and preparation of the uterus for implantation. The average duration is 28 days, but it may vary between 21 to 35 days in normal individuals. It begins at menarche, that is first menstruation, usually at puberty, and ends at menopause around 45 to 50 years. The main components of menstrual cycle, it consists of two coordinated cycles which work simultaneously. Ovarian cycle, events in ovaries, egg development into ovulation, and uterine cycle, that is changes in endometrium, menstruation and preparation for pregnancy. The hormonal control, the cycle is regulated by the hormones from hypothalamus, that is gonadotropin releasing hormone, which controls the reproductive hormones. Then pituitary gland, which under the influence of GnRH, it secretes follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. And the ovaries, which under the influence of FSH and LH, they secrete estrogen and progesterone. Then ovary control uterus through hormones. Follicle estrogen रिलीज होता है और ये बिल्ड करता है यूट्रस को फॉर प्रेगनेंसी. देन एवोल्यूशन के टाइम LH सर्ज होता है. देन आफ्टर ओवुलेशन कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और वो मेंटेन करता है यूट्रस को फॉर प्रेगनेंसी, फॉर द इम्प्लांटेशन. जैसे ही अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है या फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो जो हार्मोन लेवल है it fall down and it results in menstruation. So to understand the menstrual cycle, you need to see it as a two cycles happening together, that are ovarian cycle and uterine cycle. The ovarian cycle in the ovaries and the uterine cycle in the uterus or endometrium. Then it means ultimately menstrual cycle is ovarian plus uterine cycle. First we will discuss the ovarian cycle. This cycle explains how the ovum develops and is released. So phases of ovarian cycle, first one is follicular phase, that is from day 1 to day 13. And what happens in this phase? बहुत सारे follicles जिन्हें हम primary oocytes बोलते हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं ओवरीज में. उनमें से एक जो होता है डोमिनेंट होता है, इट इज ग्राफियन फॉलिकल, और ये डेवलपिंग फॉलिकल जो होता है कंटेन करता है द secondary oocyte. And the hormonal control, under hormonal control of follicle stimulating hormone, which is increased and it stimulates the follicle growth. Follicle secretes estrogen, which help the uterus to develop the endometrium. Then ovulation, मेच्योर फॉलिकल जो होता है वो रप्चर होता है और जो सेकेंडरी oocyte होता है वो रिलीज होता है इनटू फेलोपियन ट्यूब्स. हार्मोनल कंट्रोल क्या है? सडन LH सर्ज होता है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, जो बहुत जरूरी है फॉर ओवुलेशन. और इसको ट्रिगर कौन करता है? जो हाई एस्ट्रोजन लेवल है वो ट्रिगर करता है LH सर्ज को, और ओवम सर्वाइव करता है फॉर अबाउट 24 आवर्स. देन ल्यूटियल फेज, ये 15 से 28 दिन तक होता है. जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, और जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सिक्रीट करता है हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, जो कि मेन हार्मोन है फॉर कंटिन्यूइंग अ प्रेगनेंसी. कुछ ईस्ट्रोजन भी प्रेजेंट होता है बट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है और बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स. और हार्मोन डिक्रीज
होने की वजह से it leads to menstruation. Now let us understand the uterine cycle. Endometrial changes क्या क्या होते हैं? This cycle shows how the uterus prepares for pregnancy. Menstrual phase, that is 1 to 5 days. इसमें क्या होता है? Shedding of the functional layer of the endometrium और menstrual bleeding होती है. क्यों हो रही है? क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो ड्रॉप कर जाते हैं. देन प्रोलिफरेटिव फेज, दैट इज 6 to 14 days. इसमें क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम है वो रीजनरेट करती है और थिक हो जाती है. जो ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स हैं वो ग्रो करते हैं. और जो हार्मोनल कंट्रोल है वो होता है ईस्ट्रोजन, क्योंकि जो ओवरी में है उस टाइम फॉलिकुलर फेज चला है, जब फॉलिकल्स जो हैं डेवलप कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग देम रेडी फॉर ओवुलेशन. यूट्रस प्रिपेयर्स फॉर पॉसिबल इम्प्लांटेशन, कि हाँ इम्प्लांटेशन हो सकती है, तो यूट्रस खुद को उसके लिए प्रिपेयर करता है. देन सिक्रेटरी फेज विच इज फ्रॉम डे 15 to 28. जो एंडोमेट्रियम होती है वो थिक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और ग्लैंडुलर हो जाती है. बहुत सारे ग्लैंड्स हो जाते हैं और ये सिक्रीट करते हैं न्यूट्रिएंट्स फॉर द फर्टिलाइज्ड ओव और फॉर द एम्ब्रियो. जो हार्मोनल कंट्रोल है वो है जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ओवुलेशन के बाद, जो ग्राफियन फॉलिकल था, वो प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है फॉर मेंटेनिंग द प्रेगनेंसी. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये हार्मोनल लेवल जो होता है वो फॉल कर जाता है और एंडोमेट्रियम क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाती है, विच लीड टू मेंस्ट्रुएशन. अब कनेक्शन क्या है दोनों साइकिल्स में? ओवर जब ओवेरियन साइकिल में फॉलिकुलर फेज चल रहा है तो यूट्राइन साइकिल में मेंस्ट्रुअल और प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा है. हार्मोन कौन कंट्रोल कर रहा है? दैट इज ईस्ट्रोजन. ये चीज साइमल्टेनियसली इन ओवरीज एंड यूट्रस एक साथ हो रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन. देन इन ओवेरियन साइकिल व्हेन द ओवुलेशन अकर्स, यूट्राइन साइकिल में क्या होता है? एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज. द सेल्स रीजनरेशन जो होती है वो एट एंड होती है और ये इसको कंट्रोल कौन करता है? द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्च which is responsible for ovulation. Then when there is luteal phase in ovarian cycle, तो uterine cycle में क्या होता है? secretory phase होता है. प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है the corpus luteum in luteal phase for maintaining the pregnancy. और इसी प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में जो यूट्रस है उसमें सिक्रेटरी फेज होता है, वो थिक हो जाता है और ग्लैंडुलर हो जाता है. देन ओवरीज कंट्रोल यूट्रस थ्रू हॉर्मोन्स. जब फॉलिकल है, ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो रहा है, तो ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है जो यूट्रस को बिल्ड अप करने में हेल्प हो रहा है कर रहा है. देन ओवुलेशन, उसमें एलएच सर्ज होता है और कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है जो यूट्रस की उस लाइनिंग को मेंटेन करने में और ग्लैंडुलर बनाने में हेल्प कर रहा है. जब हार्मोन लेवल फॉल हो जाता है तो इट लीड टू मेंस्ट्रुएशन. ओवरियन साइकिल में क्या है? फॉलिकल है, ओवुलेशन है, देन कॉर्पस ल्यूटियम है. जबकि यूट्राइन साइकिल में मेंस्ट्रुएशन है, प्रोलिफरेशन स्टेज है, देन सिक्रेटरी स्टेज है. ईस्ट्रोजन का काम है ग्रोथ करना, प्रोजेस्टेरोन का काम है मेंटेन करना और एलएच का काम है ओवुलेशन को ट्रिगर करना. देन लेट्स हैव अ ओवरव्यू ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल. हाइपोथैलेमस क्या है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है. एंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट रिलीजेस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉर द फॉलिकुलर ग्रोथ इन ओवरीज, जिसकी वजह से क्या होता है? ओवरीज में ईस्ट्रोजन जो होता है वो रेज कर जाता है एंड इट लीड्स टू द एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन. जो एंडोमेट्रियम है वो प्रोलिफरेट करना शुरू करती है और हाई एस्ट्रोजन की वजह से एलिच सर्ज होता है, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, और इट लीड्स टू ओवुलेशन. जो ग्राफिन फॉलिकल डेवलप कर रहा होता है वो मेच्योर होकर ओवुलेट कर देता है. इट रिलीजेस द सेकेंडरी oocyte. देन जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन है वो इंक्रीज करता है प्रोजेस्टेरोन. जो ग्राफिन फॉलिकल ने ओवम रिलीज कर दिया, उसके बाद जो ग्राफिन फॉलिकल है गेट कन्वर्टेड टू कॉर्पस ल्यूटियम. और ये कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो सिक्रीटरी हो जाती है, ग्लैंडुलर हो जाती है फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो. बट
If there is no fertilization, the hormones will decline and it will lead to menstruation और दोबारा से साइकिल रिपीट होगी, दोबारा से एक और ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, मेच्योर होएगा और दूसरी तरफ यूट्रस में प्रोलिफरेटिव स्टेज स्टार्ट हो जाएगी. Now let us understand the menstrual cycle in a simple and visual way. We will break down it into two parts, that is ovarian cycle and menstrual cycle. First, look at the upper part of the diagram. This shows ovarian cycle, which has three phases. First one is follicular phase. Here the small follicles in the ovary start growing and a hormone called FSH increases and stimulates its growth, the growth of the follicles. जैसे जैसे follicles grow करेंगे, they release estrogen, which also start increasing. And then mid cycle सडन इंक्रीज होता है LH हार्मोन में, जिसको हम LH सर्ज बोलते हैं, और वो ट्रिगर करता है ओवुलेशन को. दिस मींस ओवरी रिलीजेस अ मैच्योर एग. देन द ल्यूटियल फेज, आफ्टर ओवुलेशन जो एम्प्टी फॉलिकल है वो बन जाता है हमारा कॉर्पस ल्यूटियम, और ये रिलीज करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, which is important for pregnancy. If pregnancy does not occur, तो जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है ये श्रिंक हो जाता है और बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स. Now in the center of this diagram, the pituitary controls the cycle by releasing FSH and LH. Estrogen and progesterone then regulate the rest of the cycle. Then in the third lower part, the menstrual phase, which is 1 to 5 day, if no fertilization happens, हार्मोन लेवल फॉल कर जाते हैं और यूट्राइन लाइनिंग जो होती है ब्रेक हो जाती है और शेड हो जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं. देन प्रोलिफरेटिव फेज, विच इज 6 to 14 days, ईस्ट्रोजन इंक्रीज करता है दोबारा से जब ओवरीज में फॉलिकल्स जो होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं और यूट्राइन लाइनिंग जो होती है रीबिल्ड और थिकन होना शुरू हो जाती है. और सिक्रेटरी फेज, विच इज 15 to 28 days, प्रोजेस्टेरोन राइज करता है ड्यूरिंग दिस फेज और यूट्रस जो होता है थिक, सॉफ्ट और रेडी फॉर इम्प्लांटेशन हो जाता है. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, हार्मोन ड्रॉप कर जाएगा, लाइनिंग शेड डाउन हो जाएगी और एक नई साइकिल शुरू हो जाती है. If you found this helpful, like, share and subscribe for more easy medical explanations. Thank you.